So physical property आपने देखा. Now we are going to see the chemical properties of alcohol. So first chemical property of alcohol is acidic nature. Acidic nature. The alcohols are acidic in nature because they having a hydrogen atom which is directly attached to more electronegative atom, that is oxygen, and they produces H plus ion. So here what happens? Alcohols produces H plus ion in aqueous solution. कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस को प्रोड्यूस करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? ये एसिडिक इन नेचर होते हैं. अगर हमने एक जनरल एग्जांपल लिया जैसे ROH है, हमने इसका बना दिया एक्वस सोल्यूशन, सो वी गेट RO माइनस प्लस H प्लस. सेकेंड अगर एग्जांपल ले ले तो वी हैव CH3OH and we are going to make its aqueous solution, so we get CH3O minus plus H plus. This is methoxide ion. This methoxide ion. We will take another example, C2H5OH, and we are going to make its aqueous solution. So we get C2H5O minus plus H plus ion. Here the alkoxide ion which is produced in this reaction, that is not stabilized by the resonance. Due to that, alcohols are very weak acid because these H plus ion can combine with this oxygen to reform the original compound. Due to that, their acidic nature is very less. Second point, methanol. Methanol is an acid which is more acidic than water. बाकी जितने भी अल्कोहल्स हैं उनकी जो एसिडिटी है, जो उनका एसिडिक करेक्टर है, वो वाटर से कम होता है. अगर कोई अल्कोहल है जो किसी से रिएक्शन कर रहा है, जैसे सपोज कि सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए मेरे पास क्या है C2H5OH है, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया किससे? सोडियम मेटल से. तो सोडियम मेटल है वो एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हमें मिलेगा C2H5O Na प्लस हाफ H2. हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है. सेकेंड एग्जाम्पल अगर ले लें तो C2H5OH और हमने यहाँ पे ले लिया NaH सोडियम हाइड्राइड, सो वी गेट C2H5O Na plus we get H2. If we take another example, C2H5OH plus NaNH2 सोडियम अमाइड, सो हमने मिलेगा C2H5O Na plus ammonia gas gets releases. If we take C2H5OH plus NaHCO3, so we get C2H5O Na plus H2CO3. This reaction is not possible because an acid which is produced in this reaction, it is more acidic than the alcohol, and if in any reaction there is a formation of a stronger acid than the reactant, those reactions never takes place. Or you can say when alcohols react with someone, it produces always a weak acid. It never produce a strong acid. If a strong acid is produced, then that reaction will never takes place. So this reaction is not possible. So this is the acidic nature of alcohol. Take the screenshot, then we have to meet with the next property of alcohol. Now the second property of alcohol. So here we are going to see reaction of alcohol.
with carboxylic acid. So what happens in this reaction when alcohol is treated with carboxylic acid, acid is formed in acidic medium. In this reaction, there is loss of water molecule between carboxylic acid and alcohol. In this reaction, there is a loss of water molecules between carboxylic and alcohol. In water, there is a HOH. This OH comes from the carboxylic acid and this H comes from the alcohol. So now we see the general reaction. So here is a carboxylic acid RC double bond OH and it is going to react with an alcohol HOR and here is two alkyl groups. So one we have to take different and this reaction takes place in acidic medium. So here is a loss of water molecules from the carboxylic acid and H from the alcohol. So we get a compound RC double bond O and R dash plus there is a H2. So in this reaction there is a formation of an ester. That's why this reaction is also known as esterification. If we see proper example of this reaction, suppose here we have taken CH3, so it will be CH3 C double bond OH plus here is H and O and here we have taken CH3 in acidic medium. So the acid that we have taken, it is acetic acid or it is ethanoic acid and the alcohol that we have taken it is methanol. So here is loss of OH group from the acetic acid and H from the methanol. So we get a product RC double bond OCH3 plus H2O and the product formed in this reaction is dimethyl ester and the IPAC name of this compound is there. Here C double OH it is attached to which carbon it is remains stay with that and other one act as a alkyl group. So here is this methyl. So its name will be methyl and here is two carbon. So it is ethane and for carboxylic this ester group we uses a word that is OATE. So its name will be methyl ethanoate. Now we take another example. Here we have taken CS3 C double bond OH plus and here is HOC2H5 and this reaction takes place in acidic medium. So here it is remains same thing that is ethanoic acid. ये इथेनॉइक एसिड है और जो अल्कोहल हमने लिया है ये इथेनॉल है. सो प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ से वाटर निकल जाएगा इन दोनों के बीच से तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा ये होगा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 plus H2O and the product so formed is here is a methyl group, here is a methyl. Both are different, so we have to
follow the alphabetic order. So name of this compound will be ethyl, methyl ester, and the alphabet name will be ethyl ethanoate. Ethanoate. In this reaction, alcohol group R or alcohol it act as न्यूक्लियोफाइल. जो अल्कोहल होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इस जो प्रोडक्ट है दैट इज एस्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन. So this is the reaction of alcohol with carboxylic acid. Take the screenshot, then we have to see the next question. Now we have to see the third chemical reaction of alcohol, and here third chemical equation is reaction of alcohol with acid chloride. एसिड क्लोराइड को हम लोग किससे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड 2 एंड Cl. इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड बोलते हैं. ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होगा? सो हियर alcohols react with acid chloride in acidic medium. That is H plus gives and एस्टर. सो इस रिएक्शन में भी हमें क्या मिलता है? एस्टर. जैसे प्रीवियस रिएक्शन हमने देखा था कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके एक एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं और जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो भी रिएक्शन करके क्या करते हैं? एक एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ वी हैव टू सी द जनरल रिएक्शन. सो हियर इज RC डबल बॉन्ड O and Cl is there, and we have taken alcohol, so it will be R, यहाँ पर इसे उल्टा लिखी H O and R dash, and this reaction is taking place in presence of an acid. So from acid chloride, here chlorine removes and H from the alcohol goes out. तो हमें क्या मिलता है? RC डबल बॉन्ड O and R dash plus there is a formation of HCl. So here the product so formed it is ester. यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो एक टाइप का एस्टर है. Now we see some example of this reaction. Suppose here we have taken CH3 as the alkyl group. CH3 C double bond O and Cl, plus here is HO and CH3, and this reaction takes place in acidic medium. So what happens in this reaction? From here Cl and H यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा. हमारे पास क्या बचेगा? CH3C डबल बॉन्ड O and OCH3, and a byproduct is HCl. Here जो कंपाउंड हमने रिएक्टेंट लिया, this compound is known as acetyl chloride, या इसी को हम लोग बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड. एंड यहाँ पे जो अल्कोहल हमने यूज किया है दिस इज मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे जो हमें एस्टर मिला है दिस इज डाईमिथाइल एस्टर है, और मिथाइल इथेनोएट. इसका अल्फाबेट नेम क्या है? मिथाइल इथेनोएट, जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा था. सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, एंड अल्कोहल ले रहे हैं HOC2H.
5 एंड इन एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H 5 plus you will get HCl. So here the product form is methyl ester. यह इथाइल मिथाइल एस्टर। और जो अल्कोहल हमने यूज किया इट इज इथेनॉल, और जो हमने एसिड क्लोराइड लिया था वो सेम टू सेम में लिया था। नाउ वी सी थर्ड एग्जांपल। सपोज हियर वी हैव टेकन C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, C2H5OH से इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमें कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 एंड यू विल गेट HCl। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, तो ये जाएगा इथाइल फिनाइल एस्टर, इथाइल फिनाइल एस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये है बेंजेनॉइल क्लोराइड और ये है इथेनॉल। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ acid chloride. Take the screenshot, then we have to see the next chemical properties of alcohol. Now we have to see the fourth chemical properties of alcohol. So here we are going to see reaction of alcohol with acid anhydride. एसिड एनहाइड्राइड। जब भी हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमें मिलता है एसिड एनहाइड्राइड। और ये एसिड एनहाइड्राइड कैसे दिखता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनता है ये हमेशा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, और दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। तो हमें मिलता है यहाँ पे एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इस एसिड एनहाइड्राइड का हम लोग रिएक्शन कराने वाले किससे, अल्कोहल से। सो व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, अल्कोहल्स react with acid anhydride gives ester and carboxylic acid. So now if we take general reaction for this one, so here we having R C double bond O and here is R C double bond O and here is a O. This is an acid anhydride. इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराने वाले हैं, हम लोग कराने वाले हैं ROH, इसको हम लोग डैश लिख रहे हैं ROH। क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे बॉन्ड ब्रेक करता है तो R यहाँ पे आ जाता है और OH ग्रुप इससे जाकर क्या होता है, अटैच हो जाता है। सो हियर वी गेट R C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज OH प्लस सेकेंड नीचे क्या बचा है, R C डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास क्या है O और क्या है R डैश। सो दिस कंपाउंड इज एन एस्टर, ये एक एस्टर है। और ये जो कंपाउंड है दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ वी सी है एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन।
सो एग्जांपल हम लोग देखते हैं. Here is a CS3 C double bond O, and here is a CS3 C double bond O, and one oxygen is bonded with this one, and here we take another alcohol, that is C2H5OH. So in this reaction what happens? The bond gets break here. यहाँ पे अटैच हो जाता है OH और यहाँ पे अटैच हो जाता है R डैश. तो हमें क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस हमें मिलेगा CS3C डबल बॉन्ड OO and CH3. So you can see here is a carboxylic acid and here is an ester. The name of this compound is ethanoic acid. Ethanoic acid, and the name of the ester is dimethyl ester. Dimethyl ester. Take the screenshot, then we have to see the next chemical properties of alcohol. Now we have to see the fifth chemical properties of alcohol. So here reaction of alcohols with hydrogen halide. हाइड्रोजन हाइलाइट. हाइड्रोजन हाइलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? HX से. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? एक HF होता है, एक HCl होगा, एक HBr होगा और एक HI. जो HF होता है इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं. इसकी वजह से इनको हम स्टडी पर्पज में नहीं रखते हैं. बाकी बच गए कौन? HCl, HBr और HI. ये HF से कम एक्सोथर्मिक होते हैं और आसानी से रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग इन्हीं तीनों पे स्टडी करते हैं, HCl, HBr और HI. अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर इसके बाद होता है HBr, फिर क्या आता है? HCl और फिर होता है HF. रीजन क्या है? बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. ठीक है, जो HI होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है और उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा. क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी उतनी क्या होती है? कम होती है. ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पे I है. ठीक है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H. ठीक है, तो HF है. ठीक है, तो जो HF बॉन्ड होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है. उससे वीक क्लोरीन, उससे वीक ब्रोमीन, उससे वीक जाता है आयोडीन. मतलब ये वाला जो HI बॉन्ड रहता है बहुत आसानी से क्या करता है? ब्रेक करता है. और ये आयोडीन इतनी आसानी से क्या होता है? फ्री हो जाता है और हाइड्रोजन फ्री हो जाते हैं, जो रिएक्शन में इजिली कोऑर्डिनेट करते हैं. तो ये इनकी क्या हुई? रिएक्टिंग की आदत. फिर जो अल्कोहल्स होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं. तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल. अगर हम लोग इसकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो 1 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. लेकिन अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं और फिर 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं. ठीक है, अब जो HX है, ये HX है, इसका जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी अल्कोहल से, सो दिस रिएक्शन अंडरगोज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होता है. जो कार्बोकैटायन होते हैं वो 3 होते हैं. 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं. जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं दे आर वेरी मच स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं. फिर
2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। फिर अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो 1 डिग्री में है, बट वो कैन शिफ्ट इंटू 2 डिग्री, मतलब एक कोई कंपाउंड है 1 डिग्री का, तो वो 2 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है। अगर कोई एक कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री का, तो वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है। कोई 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है तो वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये ट्रांजिशन यहाँ पे क्या है, अलाउड है। लेकिन अगर कोई 3 डिग्री का है और उसको हम लोग 2 डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये अलाउड नहीं है। या फिर 3 डिग्री का है और उसको हम लोग 1 डिग्री में चेंज करें, ये भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि लो डिग्री वाला कार्बोकेटाइन हाई डिग्री वाले कार्बोकेटाइन में क्या होता है, शिफ्ट हो सकता है। लेकिन हाई डिग्री वाला कार्बोकेटाइन लो डिग्री में कभी शिफ्ट नहीं होता है। तो ये जो 1 डिग्री से 2 डिग्री हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट या शिफ्टिंग ऑफ एच सी एच थ्री पी एच, इनकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, यानी कि माइग्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली देयर इज अ माइग्रेशन। और माइग्रेशन किसके होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या वहां पे एच अवेलेबल है। अगर एच अवेलेबल है तो सबसे पहले एच अवेलेबल होगा। अगर वहां पे एच नहीं है तो हम देखते हैं क्या वहां पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो अगर मिथाइल प्रेजेंट होगा तो मिथाइल शिफ्ट होगा। और अगर मिथाइल नहीं है, वहां पे फिनाइल ग्रुप है, तो हम देखेंगे कि फिनाइल पहले शिफ्ट होगा, मतलब वहां पे ये। अगर तीनों साथ में हैं तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी जाएगी किसको, एच को। सबसे पहले एच शिफ्ट होता है, फिर CH3 शिफ्ट होता है, फिर क्या होता है, पीएच शिफ्ट होता है। ठीक है, जब भी कोई अल्कोहल, एक अल्कोहल है, ठीक है, जब भी ये किसी हाइड्रोजन हैलाइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वो होता है एक RX, एक अल्काइल हाइलाइड होता है। लेकिन ये जो अल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन है, दैट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो फिर कार्बोकैटायन पहले बनाते हैं, तो इस कार्बोकैटायन की हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद हम लोग वहां पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या होता है, एक्स माइनस होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसका हम लोग उस पर क्या करते हैं, अटैक करा के फाइनल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो लेट्स सी फर्स्ट हाउ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड वाया मैकेनिज्म। Now, suppose we have taken a alcohol. Here is a CH3, CH2, CH2, and here is a OH. ठीक है, इस अल्कोहल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, here is a 1 carbon, 2 carbon, and a 3 carbon is there. Now what happens? Here there is a involvement of HX. HX है, हाइड्रोजन हाइलाइड है। ये जो HX है, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, H प्लस प्लस X माइनस में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये जो H प्लस है, इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास हमको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉन इसमें से जा चुका है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो उसको दिखता है कि जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसमें से एक लोन पेयर को ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन।
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो ये H जाकर इस ऑक्सीजन से क्या होता है, अटैच हो जाता है। फिर हमें क्या मिलता है, CH3 CH2 CH2, और यह बन जाता है OH, और एक H आकर यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, मतलब ये दो सिंगल या एक डबल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम अपनी कैपेसिटी से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हो जाता है अनस्टेबल। क्या जाता है, अनस्टेबल। तो अपनी अनस्टेबिलिटी को वैनिश करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। इसके लिए क्या करता है कि ये वाला जो बॉन्ड है जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड को ये क्या करता है, इसे ले करके बाहर निकल जाता है। तो हमें मिलता है CH3 CH2 CH2, और इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बाहर निकल जाता है H2O। If there is a positive charge over the carbon atom, then it is known as कार्बोकेटायन। ये बन गया एक कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन की हम लोग देखते हैं डिग्री। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उससे एक और सिंगल कार्बन अटैच हो, इस कार्बोकेटायन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उससे तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब जो हमने ट्रांजिशन बताया था, मतलब शिफ्टिंग बताया था या रीअरेंजमेंट बताया था, कि अगर कोई 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो वो 2 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है। अगर 1 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में हो सकता है, बट रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन से एक डायरेक्टली कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आऊं तो मुझे क्या दिखेगा, here is a CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, मतलब ज्यादा हो गई है। यहाँ पे क्या है, क्या होता है, यहाँ वाला जो एक हाइड्रोजन होता है तो यहाँ से निकलकर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हमें एक न्यू कार्बोकेटायन मिलता है, फिर से कार्बोकेटायन मिलता है। और जब हम इसकी डिग्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे दो कार्बन क्या है, अटैच्ड है। ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या हो गया, हियर इज अ रीअरेंजमेंट। क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। और उस रीअरेंजमेंट क्या हो गया है, देयर इज अ हाइड्रोजन शिफ्ट, देयर इज हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई, जिससे उसकी डिग्री 1 डिग्री से किसमें चेंज हो गया, 2 डिग्री हो गया। देन जो हमें कार्बोकेटायन मिला ये क्या हो गया, इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड वी नो दैट जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सो इट विल नॉट फर्दर undergo rearrangement, and over this stage there is a attack of nucleophile, that is X minus. Then here we get a product, that is CH3 CH CH3 and X. You know, so this compound is an alkyl halide. So this is the mechanism how the reaction of alcohols with hydrogen halide takes place, and on the basis of this whole mechanism the reactions of hydrogen halide with alcohols takes place. Take the screenshot, then we have to see some examples of
this kind of reaction. Now we have to see the reaction of alcohol with हाइड्रोजन हाइलाइड. और पहला हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. तो फर्स्ट इसमें हम लोग हैं विथ HCl. So what happens in this one? When the reactions of hydrogen halide with alcohols takes place, this reaction takes place in presence of a reagent named Lucas reagent. Lucas reagent. और Lucas reagent क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl. एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग बोलते हैं Lucas reagent. So what happens in this reaction? Alcohols react with concentrate HCl under reflux in presence of Lucas reagent. Lucas reagent gives अल्काइल क्लोराइड. अगर मैं इसका जनरेशन लिखूं जी आर, तो हमारे पास एक अल्कोहल होगा ROH. इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? वी आर गोइंग टू ट्रीट विद HCl एंड इसको कौन से मीडियम में लिया हमने? कॉन्सेंट्रेट मीडियम में. ठीक है. और किसकी प्रेजेंस में आ रहा है? दिस टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ Lucas reagent. So what happens? From here OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास बचेगा RCl एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर. जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, दिस इज एना अल्काइल हैलाइड. क्या होता है? अल्काइल हैलाइड. अब यहाँ पे जो हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल 3 टाइप का हो सकता है. 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल्स हो सकते हैं. ठीक है. अब ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका जब हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ Lucas reagent दे डिफरेंशियली रिएक्ट विथ अल्कोहल्स. मीन्स व्हाट? कि जब ये प्राइमरी अल्कोहल से, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्लो होता है. या हम कह सकते हैं कि देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी. हाँ, इस रिएक्शन में जल्दी टर्बिडिटी नहीं मिलता है. ठीक है. जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, दे आर वेरी मच रिएक्टिव देन द प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पे टर्बिडिटी क्या होती है? मिलती है अर्ली. ठीक है. वी गेट टर्बिडिटी इन मिनट्स. कुछ मिनट्स में हमें टर्बिडिटी मिल जाती है. और जब हम लोग 3 डिग्री से कराते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है? टर्बिडिटी मिलती है. और ये किस में मिलती है? इन सेकंड्स. कुछ सेकंड्स में मिल जाता है. क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो सब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं. तो 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि 3 डिग्री वाला बनाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. तो जो अल्कोहल्स है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है. तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Lucas reagent के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो डिफरेंशियली होता है. तो यहाँ पे हम लोग तीनों को अलग अलग करके देखेंगे विथ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी विथ 1 डिग्री अल्कोहल. So when we see in case of 1 degree alcohol, तो previously I told you that कि यहाँ पे क्या होता है? टर्बिडिटी हमें इजिली मिलता
नहीं है। टर्म भी इजीली मिलने का मीनिंग क्या होता है कि जो रिएक्शन हो रही है, द रिएक्शन इज वेरी स्लो और द रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो रिमेंबर हियर हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को मैं रिप्रेजेंट करूं तो जनरली मैं रिप्रेजेंट करूंगा R CH2 और OH। और इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, HCl से। कौन से मीडियम में रहेगा, कॉन्सेंट्रेट मीडियम में रहेगा। और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं लुकास री एजेंट, जो क्या होता है एनहाइड्रस, जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। और 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं दे आर वेरी मच स्टेबल, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए अगर इनकी रिएक्शन हो रही है तो वो होगा अंडर रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मीनिंग होता है कि हम कुछ चीज बॉईल करें इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे RCH2 और Cl मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा ना। अब देखेंगे ये जो अल्कोहल है, कौन कौन से ऐसे अल्कोहल है जो इस रिएक्शन को देते हैं और कुछ इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। कि यहाँ पे जो पहला अल्कोहल है दैट इज CH3OH, ये लुकास रीजन के साथ में रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेट मीडियम में। यहाँ पे क्या होता है, लुकास रीजन मतलब यहाँ पे होता है एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2। और अगर ये रिएक्शन हो रही है तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर रिफ्लक्स, मतलब हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन किस पे होगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। और हमें मिलता है CH3 C CH3 and Cl plus we get what, H2O. Similarly ethanol also react C2H5OH plus HCl in concentrate medium, and the condition is the same. So we get C2H5Cl plus H2O. And if we see the higher one, जैसे हमने ले लिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, या फिर हमने क्या ले लिया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, या फिर हमने क्या ले लिया, पेंटेनॉल, ETC। they do not they do not give give this reaction, मतलब ये लुकास टेस्ट नहीं देते हैं। रीजन क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाए तो क्या बनाते हैं, ये फॉर्म 1 डिग्री कार्बोकटान, कार्बोकेटान बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, वेरी मच अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल, जिसकी वजह से डू नॉट गिव टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी को देते नहीं। तो हमने देखा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ऑल 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव लुकास टेस्ट। टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू हैव टू सी द 2 डिग्री अल्कोहल। Now we have to see the reaction of hydrogen halide with 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड वन हम लोग दूसरे देख रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपली इसमें क्या होता है, अल्कोहल्स react with concentrate HCl in presence of Lucas reagent, that is anhydrous ZnCl2 अंडर हीट। मतलब इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, बट नॉट रिफ्लेक्स, बिकॉज जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं दे आर वेरी मच रिएक्टिव
देन द 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री से ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इससे इनको रिफ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम इनको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है। एंड अंडर हीट गिव्स गिव्स टर्बिडिटी इन मिनट्स, कुछ मिनट्स में ये क्या करते हैं, टर्बिडिटी दे देते हैं, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इफ वी सी द जीआर ऑफ दिस रिएक्शन, तो 2 डिग्री अल्कोहल के हम रिप्रेजेंट करते हैं आर सी, और यहाँ पे क्या है, ओ एच एच, और यहाँ पे है आर डैश। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, विथ एच सी एल। किसके बेसिस में रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट, क्या होता है ये, एनहाइड्रस ZnCl2, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो रिएक्शन सिमिलरली होता है, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H, तो H2 बाहर निकल जाएगा, सो वी गेट RCH R डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, एंड यू विल गेट देयर इज H2O। So you can see the reaction is similar as the reaction takes place with 1 डिग्री अल्कोहल। ये है 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये है 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट, और उसमें भी कौन सा वाला है, क्लोराइड, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्लोराइड। नाउ वी सी एग्जांपल ऑफ सच काइंड्स ऑफ रिएक्शन। पहला एग्जांपल, अगर हमने दोनों आर की वैल्यू सेम ले लिया, CH3, ये हो जाएगा CH3CH, और यहाँ पे हो जाएगा OH CH3 प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl यूज करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन होगा, इट विल बी द सिमिलर, यहाँ पे पूरा यही से आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जो अल्कोहल हमने यूज किया, इट इज प्रोपेन टू ऑल, या हम लोग कभी कभी इसको टू प्रोपेनॉल भी लिखते हैं, ठीक है। ब्रेक करेगा क्या भाई, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, सो वी गेट CH3C, यहाँ पे आ जाएगा ClH, और CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट जो बनेगा क्या होगा, वाटर। जो कंपाउंड बना इट इज 2 फ्लोरोप्रोपेन, 2 फ्लोरोप्रोपेन। नाउ वी सी one more example. Here we have taken C2H5CH, and here is a CH3, and here is OH. So this compound is butane-2-all. It is treated with HCl, and concentrate medium में, जहाँ पे सिर्फ सेम यही चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, जो टू कॉपी पेस्ट, सो यू विल गेट C2H5 CH, यहाँ पे Cl, and here is a CH3 plus HCl, sorry, H2O as a by product. So the product so formed is 2-fluoro-butane. So you can see the reactions are very much simple. Only you have to follow the sequence, how the reaction is going to take place according to general reactions. The general reaction उसके according अगर आप reaction देंगे, it will be very easy. Take the screenshot, then we will see next property with 3 degree alcohol. Now we have to see the reaction with 3 degree alcohol. So third one is with 3 degree alcohol. तो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, दे आर वेरी मच रिएक्टिव, ये प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनका जब रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दे गिव्स टर्बिडिटी इन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड में क्या होता है, टर्बिडिटी मिल जाती है। तो अगर हम लोग इसका GR देखें, तो GR में क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, RC, एंड मैं यहाँ पे लेकर रहा हूँ R, और इधर भी R,
और इधर क्या ले लिया, OH। ठीक है, अब 3R है तो आप एक को डैश एक को डबल डैश कर सकते हो। ठीक है, और किसी किसी करा रहे हैं हम लोग HCl से कॉन्सेंट्रेट मीडियम। अब यहाँ पे आप चाहे उस पर हीट करो चाहे नहीं करो, reaction will takes very easily because 3 degree alcohol is very much reactive, and here there is use of what, there is a Lucas reagent, that is anhydrous ZnCl, ZnCl2। so reaction will takes place, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। so you will get RC, R dash, R double dash, and here is a Cl, and there is a formation of H2. Now we see example. So if we take all R as a methyl, so ये होगा CH3C, here is CH3 and CH3 and OH. This is tertiary butyl अल्कोहल, या आईपेक नेम वगैरह लिखना चाहोगे, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2, और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2। और इसका हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं, विथ HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, और सिमिलर कंडीशन यहाँ पे रहेगा। यहाँ से क्या होगा, OH, यहाँ से H निकल जाएगा। so you will get CH3C, here is a CH3Cl, here is CH3 plus there is a formation of H2, so here there is a formation of tertiary butyl chloride, और आईपेक नेम लिखेंगे 2 chloro 2 methyl propane। Take the screenshot, then we have to meet with next hydrogen halide, that is hydrogen bromide HB